Hello students, good morning and welcome to my YouTube channel K Maths Academy students. Today I am going to solve previous year question paper of mathematics held in the year 2017 taken by JSSC for trained graduate teacher झारखंड हाई स्कूल शिक्षक। ओके, तो देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत पूछे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ओके, तो मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंतर्गत 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा गया था 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन था, और डिमोवल्स थ्योरम से पूछा गया था 4 क्वेश्चन ऐसे, और कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट से आपके थे 3 क्वेश्चन, और टेल्स से क्वेश्चन था 3, और समेशन ऑफ सीरीज से था 1 क्वेश्चन। आप ऐड कीजिए, देखिए टोटल होंगे कितना 15 क्वेश्चन। अभी मैं इन सभी 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। तो let us see the solution of the first question. Here it is given a complex number z is equal to cos theta comma sin theta, and we have to find out the value of z minus 1 by z, right? तो since z is equal to cos theta comma sin theta, अगर आप इसको लिखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तो ये हो जाएगा cos theta plus I sin theta. So first of all we have to find out 1 by z, that is 1 by cos theta plus iota sin theta. Now on rationalization you will find this one. Here we will get cos theta minus iota sin theta divided by a plus b into a minus b, that is a square minus b square, cos square theta minus sin square theta, but I square the value minus 1, so this becomes cos square theta plus sin square theta, a plus b, a minus b, a square minus b square, cos square theta minus sin square theta, but the value of I square is minus 1, that's why we will have to write here cos square theta plus sin square theta, and value of this term is 1. So cos theta minus iota sin theta, this is the value of 1 upon z. Finally we have to find out the value of z minus, that is z minus 1 upon z. The value of z is this one, what, cos theta plus I sin theta minus this one, cos theta plus iota sin theta, iota sin theta. Here cos and cos will cancel out, what left you may see this is twice of iota sin theta. So the final answer will be x0 plus 2 iota sin theta. You can write it 0 comma 2i sin theta or 2 sin theta. This will be the final answer, option D. Okay, let us see the solution of next question, question number 2. Here it is, what will be the argument of a complex number z? This one is a complex number, right? And we have to find out the argument of this complex number. All of you are familiar with the formula. How could we find out the argument of any complex number? That is tan inverse b by a. Suppose z is equal to a plus iota b, then argument of z is defined as tan inverse b by a if this complex number lies in first quadrant, right? So here it will be, this is b sin p upon this is a, 1 minus cos p. Now let us simplify this one, twice of sin p by 2 into cos p by 2, the formula of 1 minus cos p, this becomes twice of sin square p by 2, right? Now let us cancel. Thus finally we have here tan inverse upon cot p by 2. Let us change this in tan. This will be pi by 2 minus p by 2. Now its value becomes pi by 2 minus p by 2. This one will be the argument of this complex number, right? The option C is correct. Let us see the solution of the next question, question number 3. Here is a complex number z, right, satisfying this relation, and we have to show that this z constitute a either
हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला और सर्कल। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक यानी लोकस से रिलेटेड क्वेश्चन है और अक्सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सारे बच्चे मिस्टेक बनाते हैं। ठीक, तो इसको आप ऐसे बना सकते हो। देखिए यहाँ से आप शुरू कीजिए, जेड स्क्वायर प्लस आप इसको लिख सकते हो 1/z² इज इक्वल टू 2, राइट। दिस विल बी z² प्लस 1/z² माइनस 2 इक्वल टू 0। z² प्लस 1/z its whole square minus 2 into z into 1/z is equal to 0. A square plus b square minus 2ab, that is a plus b and its whole square, that is z minus 1/z its whole square equal to 0. We can write this result as this one. अब आपको पता होना चाहिए कि दिस इज ट्रू ओनली व्हेन, ये तभी सही होगा जब z माइनस 1/z इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा 1/z, राइट, और फिर आप देखोगे तो आपको मिलेगा z² इक्वल टू 1। अब आप क्या करो, z का वैल्यू पुट करो ये, तो फिर आप जैसे ही z² दैट इज x प्लस आयोटा y इंटू एक्स प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 1, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे जैसे ऑर्डिनरी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो फिर आपको मिलेगा x² माइनस y² प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। ये फॉर्म में लिखोगे तो दिस बिकम्स 1 प्लस 0 इंटू आई। नाउ ऑन कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट यू विल गेट व्हाट, x² minus y² is equal to 1, this one is equal to this one, and here it is 2xy equal to 0, 2xy equal to 0, that is xy equal to 0. Remember here xy equal to 0 is not possible. अगर ये 0 हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये जो रिलेशन है ये फिर आपका ट्रू नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, this is not possible, right? And if this is not possible, then we have this one, that is x² minus y² equal to 1, and this is nothing but what, hyperbola. So the answer of this question will be hyperbola, right? Let us solve the question number 4. This question is related to cube roots of unity. Okay, तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देन टू फाइंड आउट दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए कैसे होता है, a प्लस बी, ये दोनों को पहले पेयर आप बनाइए, a ओमेगा b ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा, राइट। नाउ a प्लस बी इंटू आप इसको पहले मल्टीप्लाई करो इससे, तो a² ओमेगा क्यूब प्लस दिस वन a इंटू बी ओमेगा स्क्वायर, राइट। नाउ दिस विल बी ab ओमेगा टू द पावर 4 एंड फाइनली b² इंटू ओमेगा क्यूब। अब आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता है जिसको आपको याद रखना है। पहला क्या है, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, और अगर कहीं ओमेगा का पावर 4 5 कुछ होता है तो फिर आप इसको ऐसे लिखते हो, ये देखिए, फिर इसका वैल्यू आपका 1, तो 1 इंटू ओमेगा मतलब ओमेगा, राइट। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, 0। ऐसे प्रॉपर्टीज का आपको यूज करना है और इसको रेड्यूस करना है। तो देखिए a² ओमेगा क्यू का वैल्यू 1, तो दिस इज a²। हियर वी कैन टेक कॉमन ab ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 4 के बदले में आप क्या लिखोगे, ओमेगा प्लस ओमेगा दिस वन, और ये b² ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 ऐसे। नाउ a प्लस बी इंटू a² प्लस ab, आप इसका वैल्यू यहाँ से क्या लिखोगे, इसको उधर लेके जाओगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यहाँ -1 पुट करोगे तो ये डायरेक्ट -ab
और प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ये आपका आंसर हो गया डी। अगर आप इसको याद रखते तो फिर ये करना नहीं पड़ता, इजीली ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, जैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कैसे फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे लिख के एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, ऐसे इसका भी फैक्टराइजेशन होता है। इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोटा, और इसको फैक्टराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 and question number 6 together. The main use of Gregori series is to find the value of, देखिए ये Gregori series है ना, उसका एप्लीकेशन से पूछा है और जस्ट बेसिक है ये। हम लोग सबको पता है कि ग्रेगोरी सीरीज जो है इसका जो मेन एप्लीकेशन होता है वो पाई का वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए यूज होता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए लिखा है इफ थीटा लाइज विद इन द इंटरवल दिस वन, -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है थीटा, तो हमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए। यही तो ग्रेगोरी सीरीज ही है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि कहीं पर भी हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, tan इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 1/3x³ प्लस 1/5x5, like this, right? Let us substitute tan inverse x is equal to theta, which will provide us x is equal to tan theta, right? Then what will happen here? See now, the tan inverse x, this is theta, right? The place of x we will have to write tan theta minus 1/3 tan cube theta plus 1/5 tan to the power 5 theta. Similarly we will get this series, okay, minus up to infinity. Thus the value of this one we can write theta, so its answer will be option number B. Okay, let us see the question number 7. Okay, here n is an integer and we just have to find out the value of this one. हमको लगता है ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट थोड़ा थोड़ा ध्यान देने का ज़रूरत है। हमको पूछ रहा है कि इसका वैल्यू इसमें से कौन होगा। तो देखिए cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, इसका पावर आपका क्या है, n है। ठीक है, और इसका आपको पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये काफ़ी इजी है। ये अगर इंटीजर है तो फिर ये आपका इनसाइड आ जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, ऐसे। और फिर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डी मॉर्गन्स थ्योरम का स्पेसिफिक केस है, जब ये एक बार पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, ऐसे करके हम लोग डिफरेंट केसेस लिखते हैं, उसी में से एक है। ठीक, लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ दिस 1 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा टू द पावर n। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले ना आपको देखना पड़ेगा कि कॉस और साइन दोनों का वैल्यू जब सेम है तो कितने डिग्री का वैल्यू सेम होता है, दैट इज π/4 1/√2। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको 1/√2 इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे √2 टू द पावर n, और उसको अंदर इन्वॉल्व करवाएंगे ये ऐसे, और यहां पर भी एक साथ ऐसे, ओके। और इसके बाद आप इसको कितना लिखोगे, cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4 इट्स पावर n प्लस cos π/4 प्लस आयोटा cos π/4 माइनस आयोटा sin π/4 इट्स पावर n। अब आप यूज करो डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, 2 टू द पावर n/2, और ये पावर इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos n π/4 प्लस आई sin n π/4 प्लस ये यहाँ पर cos
एन पाई बाई फोर माइनस आयोटा साइन एन पाई बाई फोर। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से, तो ये एक और एक दो, यानी आपको मिल जाएगा 2 इंटू टू टू द पावर n बाई टू इंटू कॉस n पाई बाई फोर। अब आप यहाँ कुछ नहीं तो 1, अब इसको ऐड करो तो 2 n बाई टू प्लस 1 इंटू कॉस n पाई बाई फोर। अब आप इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर n प्लस टू बाई टू इंटू कॉस n पाई बाई फोर। फाइनली we'll get the correct answer, that is option B. Okay, let us solve question number 9 and question number 10. Right, question number 9 में cos hyperbolic inverse x का just result पूछा हुआ है। ओके, तो cos hyperbolic inverse x, sin hyperbolic inverse x और tan hyperbolic inverse x का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, जिसको आपको याद रखना है। ओके, तो अभी इसका आंसर तो मैं बताऊं ये होगा, लेकिन अगर आप भूल जाते हो तो क्या करोगे, भूल जाने से आप इसको डिराइव भी कर पाओगे। देखो ऐसे करके डिराइव कर लेना, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x को आप मान लो थोड़ा देर के लिए y, ठीक है, तो फिर ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक y, और cos हाइपरबोलिक y बिकम्स cos i इंटू वाई, ऐसे, ठीक है, आयोटा y। और फिर यहां से आप अगर आयोटा y का वैल्यू निकालोगे तो ये इधर आएगा, तो हो जाएगा cos इनवर्स x, ऐसे। फिर यहां से y इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो 1 बाई आई इंटू कॉस इनवर्स x, और 1 बाई आई जो होता है ये आपका होता है माइनस आई। आप इसको ऐसे रैशनलाइज करो ना इस तरह से, तो i बाई आई स्क्वायर का वैल्यू -1 मतलब माइनस आयोटा आपको मिलेगा, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ से देखिए y इक्वल टू ये, तो आप इसको लिखोगे cos हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई आई का वैल्यू माइनस आई, तो माइनस आई कॉस इनवर्स और क्या x, देखिए रिजल्ट आ गया ऐसे, माइनस आई कॉस इनवर्स। तो अगर भूल जाओगे तो ऐसे आप डिराइव भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको कंपटीशन में वीकली सॉल्व करने के लिए याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। 10 का जो सॉल्यूशन है इसको समझिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज ऑफ, देखिए ये एप्लीकेशन ऑफ डिवाइस में हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर अगर ये p बाई क्यू हो तो इसके q डिस्टिंक्ट वैल्यूज होते हैं। तो अभी जो 3/2 है तो इसके 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगे और उसका प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप उसको लिखो cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 का पावर यहाँ पे 3 करो, और फिर इसको बाहर ऐसे 1/2 लिखो। अब 3 को विद द हेल्प ऑफ डिवाइवर्स वी कैन राइट इट cos 3 पाई बाई 6 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 6 राइट इज इक्वल टू 1/2। अब आप इससे इसको कैंसिल करो ऐसे, ठीक है। इसका जनरल वैल्यू आपको लिखना है, तो 2k पाई प्लस यहाँ आपको क्या बचा पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई बाई 2, और इधर है आपका 1/2। अब यहाँ से इसको इनसाइड करके लिखोगे तो लिखोगे मतलब 2 जब यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका k इंटू पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस आई साइन k पाई प्लस पाई बाई 4। अब आपको कितने वैल्यूज, 2 वैल्यूज, तो फर्स्ट वैल्यू के लिए फॉर फर्स्ट वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 पुट करने से फर्स्ट वैल्यू यहाँ से आएगा, तो ये 0 ये 0, आपको मिलेगा cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 फॉर सेकेंड वैल्यू, राइट। यहाँ से आपको सेकेंड वैल्यू चाहिए, k इक्वल टू आप 1 पुट करो, तो आपको सेकेंड वैल्यू भी 1, दैट इज पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4 मीन्स 5 पाई बाई 4,
दिस इज 5 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन, यहाँ भी पाई तो पाई प्लस पाई बाई 4 दैट इज 5 पाई बाई 4 ऐसे। अब ये दोनों वैल्यूज का आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट निकालोगे जब ये दोनों वैल्यूज का, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस 5 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। ये आपको पता ही होगा कि एंगल जो होता है वो ऐड हो जाता है, तो पाई बाई 4 प्लस 5 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 प्लस 5 पाई बाई 4 ड्यूमेबल्स का एप्लीकेशन है। अब इसको ऐड करो तो 6 पाई बाई 4 दैट इज कॉस, फाइनली आपको मिलने वाला है 3 पाई बाई 2। देखिए 5 पाई बाई 4 पाई बाई 4 प्लस 5 पाई बाई 4 दैट इज 6 पाई बाई 4। आफ्टर कैंसिलेशन 6 पाई बाई 4 2 3 पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 2। तो आपको यहाँ मिलने वाला है, देखिए cos 3 पाई बाई 2 का वैल्यू आपका 0 होता है i, और sin 3 पाई बाई 2 का वैल्यू होता है -1, तो ये माइनस i, द आंसर विल बी माइनस i, आई मीन ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। ओके, लेट अस सी solution of question number 11 and question number 12. Okay, right, here we have this expression and we have to write the value of this expression. देखिए ये जो एक्सप्रेशन दिया है ना, इसका हमको वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू ऐसा नहीं कि बहुत टफ काम है, ग्रेगोरी सीरीज का एप्लीकेशन है जो काफ़ी इजी है, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। आपको ये याद रखना है कि tan इनवर्स एक्स जो होता है इतना इक्वल होता है एक्स माइनस 1/3 और एक्स क्यूब प्लस 1/5 इंटू x5 माइनस एस। ठीक है, अब आप इसमें पुट कर दो एज पर रिक्वायरमेंट, अभी हम लोग पुट करने वाला है x इक्वल टू 1/4, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1/4 ऐसे। तो आप पुट करो, यहाँ भी पुट करोगे 1/4, यहाँ आपको पुट करना है 1/3 इंटू ये 4 का पावर क्यूब प्लस 1/5 इंटू ये हो जाएगा 4 का पावर 5 माइनस ऐसे। अब इसमें से आप 1/4 को कॉमन ले लो तो फिर ये सीरीज आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 1/3 और ये कितना देखिए 4 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/5 इंटू 4 का पावर 4 ये आपको मिला और माइनस अप टू इन्फिनिटी बस। और इधर आपका कितना था देखिए tan इनवर्स 1/4। अब इस 4 को अगर आप इधर लेके आ जाओगे tan इनवर्स 1/4, इस 4 को इधर लेके आओगे तो 4 इंटू tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू ये सीरीज आपका बच जाएगा। ठीक है, 5 4 का पावर 4 माइनस ये सीरीज मिल जाएगा। हमको इसी का वैल्यू चाहिए था, इसका वैल्यू क्या नहीं है, देखिए ये ऑप्शन सी कर। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। राइट, देखिए यहाँ पर cos θ1 प्लस आई साइन θ1 अपन cos θ2 प्लस आई साइन θ2, इसका एक्सप्रेशन आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हम लोग रिजल्ट ही जानते हैं, अगर इसको आप रेशनलाइज करोगे या डायरेक्ट ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा cos θ2 माइनस आई साइन θ2, इसके साथ प्रोडक्ट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिटेल से बनाना चाहोगे सीखने के पर्पज से तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये है आपका cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 बाई cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। आप इसको जस्ट रेशनलाइज करो तो cos θ2 माइनस आयोटा साइन θ2 बाई cos θ2 माइनस आयोटा साइन θ2। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा cos θ1 इंटू cos θ2। ठीक है, इसके साथ फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि आई इस पर का वैल्यू -1, तो दिस बिकम्स साइन θ1 इंटू साइन θ2। राइट, नाउ आई कॉमन हो जाएगा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये हो जाएगा आपका साइन θ1 इंटू कॉस θ2 और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कॉस θ1 इंटू साइन θ2, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। और नीचे लिखने का जरूरत नहीं है, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर θ2
माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2, लेकिन आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है जिससे प्लस मिल जाएगा वैल्यू, ये हम लोग को मिलेगा देखिए थीटा 2। अब इसका वैल्यू तो 1 होता है, उसको हम लोग लिखेंगे नहीं। अब cos a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, जिसका वैल्यू होता है cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। देखिए ये ऑप्शन आपको मिल गया बी। ऐसे भी बना सकते हो डायरेक्ट, अगर आपके पास फॉर्मूला है तो फिर आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और हमको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करना है। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ ये कि देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे या नॉर्मली स्टूडेंट्स ऐसे सॉल्व करते हैं, z इज इक्वल टू -1 अपन e का पावर i पाई बाई 3, और फिर ये जो e का पावर i पाई बाई 3 है इसको ऐसे लिखता है cos पाई बाई 3 प्लस i साइन पाई बाई 3, ये यूलर फॉर्म में है। फिर इसको cos पाई बाई 3 का वैल्यू पुट कर देगा आपका, ठीक है, 1/2 प्लस साइन पाई बाई 3 का वैल्यू √3/2 इंटू आई, फिर उसको यहाँ रख के फिर उसको रेशनलाइज करके लास्ट में फिर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यूज करके काफ़ी लेंदी सॉल्व होता है इसका। हाँ आंसर जरूर आएगा, लेकिन इतना आसान नहीं, आप एक बार ट्राई करके देखना। बट देखिए मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, देखिए कंपटीशन को क्रैक करने के लिए ना आप केवल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये मायने, क्वेश्चन को काफ़ी कम से कम पॉसिबल टाइम में सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप इसको ना एक ट्रिक से सॉल्व कीजिए, काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। z इज इक्वल टू आप इसको लिखिए -1 प्लस आई बाई, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस फॉर्म में कहीं लिखा हुआ है तो ध्यान देने वाली बात क्या है, r आपका होता है मॉडुलस और थीटा होता है एम्पलीट्यूड। यानी ये जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसका एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है पाई बाई 3। अब केवल आप ऊपर वाला निकालिए, काफ़ी इजी होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये -1, 1, तो इसका जो आर्गुमेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट में जब लाई करता है तो इसका आर्गुमेंट यानी ऊपर वाला का जो आर्गुमेंट होगा ना इसका वो हो जाएगा, यानी मैं देखिए यहाँ लिख देता हूँ आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आई, दिस इज व्हाट पाई माइनस tan इनवर्स और 1/1 ये मॉडुलस देते हैं मैग्नीट्यूड। तो फिर आपको मिल जाएगा, ये आपको पॉजिटिव लेना है, तो फिर आपको मिल जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4 tan इनवर्स 1 का वैल्यू, फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको मिल जाएगा 3 पाई बाई 4। ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर वाला है ना इसका आर्गुमेंट आया 3 पाई बाई 4, और जो इसका डिनोमिनेटर में है आपका ये, इसका तो आर्गुमेंट हमको पता ही है कितना पाई बाई 3, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, तो फिर देखो तुरंत बन जाएगा, यानी आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आई माइनस आर्गुमेंट ऑफ ये नीचे जो लिखा हुआ है ये पूरा ऐसे। तो ऊपर वाला का आर्गुमेंट मैंने निकाला कितना 3 पाई बाई 4 और माइनस नीचे वाला का आर्गुमेंट तो साफ दिखाई दे रहा है, ये देखो पाई बाई कितना 3, तो फिर इसको आप माइनस करो ना, देखो तुरंत आंसर आ जाएगा। तो दिस इज 12, ये 9 पाई माइनस 4 पाई, तो ये आपको मिल गया 4 पाई बाई 12 ऐसे, ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, द सेकेंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो। Here we are given P and Q are two complex numbers such that satisfy this condition, right? Then we have to determine the value of argument of P minus argument of Q. ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए मैं क्लास में आप लोग को बताया था ये बात कि इस तरह के 4 सिचुएशंस होते हैं, उस 4 में से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, इसलिए आप उसको ध्यान से चारों चीज़ों को याद रखना। ऐसे मैं इसका एक शॉर्ट आइडिया बताता हूँ कि देखिए P प्लस क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P, मतलब मॉडुलस ऑफ P प्लस मॉडुलस ऑफ Q, ये तभी होल्ड होता है कहीं पर भी जब P और Q एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और उस सिचुएशन में क्या होता है कि आर्गुमेंट ऑफ P बराबर हो जाता है आर्गुमेंट ऑफ Q, और जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो फिर आर्गुमेंट ऑफ P माइनस आर्गुमेंट ऑफ Q इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर आपके ये आंसर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसका मोर डिटेल से सॉल्यूशन चाहोगे तो देखिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना आप P प्लस Q ये वाला जो पार्ट है ना
इसको फॉलो करो। तो p प्लस क्यू का ना स्क्वायर निकालो, तो p प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू का मॉडुलस, ऐसे ये होता है फॉर्मूला आपका, मोड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो p प्लस क्यू और कंजुगेट ऑफ p प्लस कंजुगेट ऑफ q, तो ये आपको पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो p और कंजुगेट ऑफ p आएगा, और फिर एक बार q इंटू कंजुगेट ऑफ q आएगा ऐसे, और फिर आपको मिलने वाला है क्या, देखिए p जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस ये q इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ये तो आप लिख सकते हो p स्क्वायर, ये तो आप लिख सकते हो q स्क्वायर, बट ये वाला वैल्यू, ये जो आपको वैल्यू देगा, अगर इसको हम आयलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 मॉडुलस ऑफ p मॉडुलस ऑफ q और फिर cos θ1 माइनस θ2, राइट। और ये जो कि स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ पर इधर भी स्क्वायर करता तो ये वाला वैल्यू मुझे यहाँ इतना मिलता, और राइट वाला पार्ट में मुझे मिलेगा ये 2 मॉडुलस ऑफ p इंटू मॉडुलस ऑफ q। अब इसे करने से देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है, ये आपका यहाँ से ये कट जाता, ठीक है, और ये वाला पार्ट कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा cos θ1 माइनस θ2, इसका वैल्यू ये इससे कट के यहाँ 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 1, और ये आपका मिलता है cos 0, राइट। तो फिर ये देखिए ये इक्वल टू हो जाएगा θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0। θ1 और θ2 क्या है, कुछ नहीं, आर्गुमेंट ऑफ p माइनस आर्गुमेंट ऑफ q इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा क्या, 0। द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन है समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज का। ये देखिए एक सीरीज दिया हुआ है, इसका हमको सम चाहिए। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड का यूज करते हैं, c प्लस आई एस मेथड। तो ये जो है ना साइन में अगर है तो इसको आप s मान लो, और इसी तरह का एक नया हम लोग सीरीज कन्वर्ट करते हैं जो कॉस में होता है, c फॉर कॉस। तो ये आपका हो जाता है cos p प्लस x, जैसे है वैसे ही ये एक नया सीरीज यहाँ पर हम लोग को डेवलप करना होता है, और साइन की जगह बस कुछ नहीं cos लिखना है इस तरह से। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं c प्लस आई एस, मतलब ये दोनों को ऐड करते जाना है। तो ये यहाँ देखिए ये हो जाएगा cos p प्लस यहाँ पर i sin p ऐसे, फिर आपको मिल जाएगा x, ये दोनों में कॉमन, तो यहाँ मिल जाएगा cos p प्लस q प्लस i sin p प्लस q, फिर ये दोनों आपका फैक्टर हो जाएगा प्लस ऐसे, तो यहाँ पर मिल जाएगा cos p प्लस 2q प्लस i sin p प्लस 2q, और ऐसे ही ये चलेगा आगे। ठीक है, फिर आपको ये जो है ना आइलर फॉर्म में लिखिए, तो e i का पावर p x e i का पावर p प्लस q प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 e i का पावर p प्लस 2q ऐसे आएगा। अब ये ऐसे चलते जाएगा, ये एक्चुअली एक ज्योमेट्रिक सीरीज होता है। तो यहाँ से ना गलत मैं लिख दिया, i होगा सॉरी, ये देखिए इस तरह का एक सीरीज मिलेगा, एक्सपोनेंशियल सीरीज। अब यहाँ से अगर आप इसको ऐसे कॉमन ले लो तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा, यहाँ x मिलेगा, e का पावर i क्यूब, फिर यहाँ से भी e का पावर i p बाहर हो जाएगा, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और ये हो जाएगा e का पावर i इंटू क्या 2q, और ऐसे ही चलते जाएगा। अब आप यहाँ पर मान लो z इज इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर i क्यूब, तो ये एक आपको नया सीरीज मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 1, ये z स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और ऐसे ही करके, और फिर आप इसको सॉल्व करने जाओ तो e का पावर i एक्सपोनेंशियल सीरीज e का पावर z हो जाएगा। अब फिर z का इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, तो e का पावर i p, और वो आप देखिए तो ये आपका x इंटू ई का पावर i क्यूब। यही पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कंसंट्रेट कीजिए। तो e का पावर i p, और ये यहाँ पर इसको आप लिखोगे तो x और e का पावर i क्यू को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखोगे तो cos q प्लस i sin p, सॉरी sin q, ये आ जाएगा। फिर यहाँ से
आप इसको अलग अलग करो तो देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दो पार्ट है, तो ई टू द पावर एक्स और कॉस क्यू आपका बाहर आ जाएगा और ये इसके साथ इधर ऐड हो जाएगा, तो ई आई इंटू मिल जाएगा आपको पी प्लस एक्स साइन क्यू, इस तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ई टू द पावर एक्स कॉस क्यू दिख रहा है ना, यस, ई एक्स टू द पावर कॉस क्यू, तो ये आपको मिल जाएगा कॉस पी प्लस एक्स साइन क्यू प्लस आई, ये यहाँ पर प्लस कॉस पी और फिर ये आ जाएगा साइन पी प्लस एक्स साइन क्यू। अब देखिए आपको किसका चाहिए, देखिए अब अगर आपको साइन वाला चाहिए तो फिर इमेजिनरी पार्ट को अपना इक्वेट कर दोगे यहाँ से, ठीक है, और अगर कॉस वाला चाहिए तो रियल पार्ट को इक्वेट करोगे, तो अभी मुझे साइन वाला चाहिए ना, तो ये देखिए एस तो मैं इसी सीरीज को माना हूँ, तो एस का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मैं लिख देता हूँ ई एक्स कॉस क्यू और फिर ये वाला पार्ट साइन और पी प्लस एक्स साइन क्यू, इस तरह से ये वाला सेक्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाला पार्ट आंसर हो जाएगा, ई एक्स कॉस क्यू साइन पी प्लस एक्स कॉस साइन पी प्लस एक्स साइन क्यू, ये देखिए ये मैच करें।